Okay, so congratulations to all of you for clearing CFA Level 2 convincingly. CFA Level 2 का clearance is a great achievement because CFA Level 2 is high in terms of depth. So anybody who clears Level 2 has shown his sincerity to become a CFA charter holder, but that does not mean that CFA Level 3 is a given. It is very qualitative, it's very applicative as compared to Level 2, which was valuational, quantitative, and so on. So this session is number one, to congratulate you, to congratulate your family, who has been an important stakeholder in your entire journey. And this session is more so to discuss about Level 3. So why are you being so serious? It is necessary to be serious. Each and every day is passing by. Your career aspirations have to be met. And I think you want me to be serious. You want me to speak out clearly as to the path ahead, how to move ahead. So there are two issues in this regard. Number one is your journey towards Level 3. And second is your general journey. For example, some of you may not be working till now. You may have completed your graduation, but still you are not working. So what about the work-ex? Shouldn't you start working? But if you start working along with Level 3, is it that Level 3 can be given then a bit later? So how do we decide upon that? That working with Level 3 or not working, completing Level 3, then getting into the job? So what are my views in this regard? Secondly, what are the job prospects after Level 2? Is it that jobs are abundantly available, high profile jobs? So what is my view in this regard? So we are going to discuss all this. Before I start discussing, may I ask you all to put in some specific queries that you have? Yes, please. Manish, Akash, Shivansh. If you have some queries, I'll get some more idea before I start speaking. Pathways के बारे में है. Okay, some doubt is about the pathway. I'll talk about it. Internship and job after Level 2. I already set the agenda. मैं बात करूंगा उसका. Level 3 का overall preparation strategy. We will definitely talk about it. Real challenge क्या है Level 3 में? Level 2 में क्या था real challenge? Pathway का we will talk about it. Knowledge of Level 2 required in real life. Knowledge of Level 2 required for Level 3. With job or without job Level 3. When to take Level 3. Important skills to learn along with Level 3. Handling of essay type questions in Level 3. Okay. So, more or less, I know what the questions are. Okay, pathway वाला मैं initial introduction में बोलना भूल गया था, वो बोल दूंगा. So, let's do a very strange thing. You know it is required. आपको लगेगा कि सर फिर से पढ़ाना चालू कर दिए हैं, but please give me this liberty. I am posing a question before you and you have not studied Level 3 at all. आपने Level 3 का पढ़ाई नहीं किया है and I am asking you a question of Level 3 which has come in the past papers. Because Level 3 का papers पुराना CFA Institute shares. Are you ready for the challenge? Let's go for it. So there is a question that came in the past papers of CFA Level 3 where it was that we are in an economic environment where inflation is going to rise. Okay, the forecast is that inflation is going to rise. जैसे अभी Trump आने वाला है ना. So US में there's a forecast that inflation will rise because of tariffs, because of the fact that he's going to go for a tax cut because of his immigration policy, supply side inflation hoga. So we are in an environment where inflation is going to rise. Whereas Fed has announced around 1 or 2 policy cuts that they are going to cut interest rates by 25 basis points or 25 basis point in the next 2 monetary policy meetings. That's the guidance given by Fed. Although Fed ka guidance has been very bad in recent terms, but ठीक है, we'll live with the guidance. So what is the forecast? The forecast is that inflation is going to rise. अभी तक मैंने question नहीं पूछा है तो आप अपना comment टिप्पणी चालू मत कर दो. सुनो, सुनना सीखो. Okay? Inflation is going to rise. That's the forecast. There are 3 instruments you have to choose in the light of the fact that inflation is going to rise. Number 1, a floating rate note. Number 2, a fixed rate bond. Number 3, inverse floater. Number 1, a floating rate note. Number 2, fixed income bond. ABC बोलते हैं. A, floating rate note. B, fixed rate bond. C, inverse floater. Which one should we choose? Determine, okay, and justify. Determine and justify. It's a constructive response question. Determine and justify. Yes, please. It's unprofessional. Some people are still writing about other things. तो भाई फिर लेवल 3 का मेच्योरिटी आप में नहीं है. तो वन ऑफ द रीजंस लेवल 3 क्यों क्लियर नहीं होगा इज दैट यू डोंट हैव द मेच्योरिटी ऑफ लेवल 3. यस, आई मीन इट. वी आर कैरिंग आउट अ डिस्कशन. आपको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए एंड आप अभी भी दाया बाया कर रहे हो.
Your t-shirt is looking good. Simran is writing. Just think about it. And it's not that sir आप तो मजाक नहीं करते हैं. We are talking something. You should behave like a professional. Yes, please. हितेश मेहता का जवाब आया है. I'm waiting for other answers. A था फ्लोटिंग रेट नोट, B था फिक्स्ड रेट बॉन्ड और C था इनवर्स फ्लोटर. हिमांशु का अलग जवाब है और रोशिश श्रीदांग का अलग जवाब है. Take your time because these things are going to generate or break your confidence. Some students are answering किस बेसिस पे बताएं? कुछ हट के जवाब देते हैं. Which is the odd one out? फ्लोटिंग रेट नोट हमेशा ही सुनते हैं. फिक्स्ड रेट बॉन्ड नॉर्मल है. इनवर्स फ्लोटर अच्छा लगा यार, अलग था, कुछ अलग हट के. आपको हट के जवाब नहीं देना था, आपको सट के जवाब देना था. यू हैड टू आंसर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज. तो जिन्होंने भी इनवर्स फ्लोटर आंसर दिया, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. हाउ डिड यू थिंक अबाउट इनवर्स फ्लोटर? द ओनली थिंग दैट वेंट इनटू योर ब्लड वेन्स व्हेन यू गेव इनवर्स फ्लोटर इज दैट यू फेल्ट दैट थोड़ा सा अलग है यार, हटके. सर पूछ रहे कुछ हटके होगा. वेरी बैड आंसर जिन्होंने भी इनवर्स फ्लोटर दिया. वेरी बैड वे ऑफ थिंकिंग. और नॉलेज की बात ही नहीं है. सर अभी लेवल 3 किया नहीं है. अरे किया नहीं का बात क्या है? फ्लोटिंग रेट नोट फिक्स्ड रेट बॉन्ड दोनों में से कौन सा आंसर होगा? इफ वी आर एक्सपेक्टिंग हाई इन्फ्लेशन तो फ्लोटिंग रेट नोट फिक्स्ड रेट बॉन्ड दोनों में से कौन सा आंसर होगा? नाउ वेरी गुड. 95% students have given the correct answer floating rate note. 95% students have given correct answer floating rate note. Okay, floating rate note पे जाना चाहिए. क्वेश्चन था determine and justify. Determine and justify तो determination में floating rate note 1 marks. फ्लोटिंग रेट नोट 1 मार्क्स. अब जस्टिफाई में से 3 नंबर का जस्टिफिकेशन है. 3 नंबर का जस्टिफिकेशन है. जब 3 में से आपने एक चुना फ्लोटिंग रेट नोट, आपको जस्टिफाई करना है, तो यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई फ्लोटिंग रेट नोट. यू हैव आल्सो गॉट टू जस्टिफाई बाकी दोनों क्यों नहीं. आई रिपीट, आपको समझाना है फ्लोटिंग रेट नोट क्यों एंड बाकी दोनों क्यों नहीं. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द अदर 2 आर नॉट देयर. ठीक है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा. एंड जितना शॉर्ट हो सके उतना समझाना है, उसको टीच नहीं करना है. यू डोंट हैव टू टीच हिम, यू जस्ट हैव टू पॉइंट आउट. सो उसका रीजनिंग काफी जन ने सही दिया है. कुछ लोग बोल रहे हैं रीजन है इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज. ओके, रीजन क्या दिया है? बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज. रॉन्ग. बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज ये केस फैक्ट में दिया हुआ था, तो यू आर रिपीटिंग द फैक्ट. अगर इफ यू आर राइटिंग इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज, आप फैक्ट रिपीट कर रहे हो. ठीक है, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा. इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज, सो सेंट्रल बैंक विल फाइट इन्फ्लेशन बाय फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. ये लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है. हो सकता है यू राइट इन्फ्लेशन विल राइज देयरफॉर इंटरेस्ट रेट विल राइज. एकदम करेक्ट है, बिकॉज सेंट्रल बैंक विल रेज इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट विल राइज. एंड इफ इंटरेस्ट रेट विल राइज, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड प्राइस विल फॉल. वी शुड नॉट बाय फिक्स्ड इनकम बॉन्ड. करेक्ट, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड गया. इफ इंटरेस्ट रेट विल राइज, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड विल ऑफर हायर कूपन. वी शुड गो फॉर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. इनवर्स फ्लोटर में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इनवर्स फ्लोटर में तो द इक्वेशन फॉर द कूपन इज इट्स लाइक 20% minus SOFR. It's a certain rate, 10% minus a benchmark rate. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनवर्स फ्लोटर का कूपन तो गिरेगा. तो सिंपल 1 लाइन आंसर क्या हुआ? इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज, देयरफॉर इंटरेस्ट रेट्स विल राइज. FRN का कूपन विल राइज, देयरफॉर गो फॉर FRN. फिक्स्ड रेट बॉन्ड विल फॉल इन प्राइस, डू नॉट गो फॉर फिक्स्ड रेट बॉन्ड. इनवर्स फ्लोटर का कूपन विल फॉल. दैट्स द रीजन. I don't know whether you felt or not. इस इतना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था कि लेवल 1 में भी अगर ठीक दिमाग चल रहा है तो वन वुड बी एबल टू गेस द सेम. हो सकता है कोई मूड में नहीं थे, कोई अलग हिसाब किताब में थे, तो अलग बात है. अदरवाइज इफ यू इंट्रोस्पेक्ट लेटर ऑन, यू कैन नॉट से दैट सर क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बाप रे बाप. नॉट एट ऑल. इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको जस्टिफिकेशन में फ्लोटिंग रेट केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा देने से नहीं चलेगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का कूपन बढ़ेगा, फिक्स्ड रेट बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, इनवर्स फ्लोटर का कूपन गिरेगा. रीजन क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का कूपन बढ़ेगा, फिक्स्ड रेट बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, इनवर्स फ्लोटर का कूपन गिरेगा. दैट्स द रीजन. हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो. सर इंग्लिश रॉन्ग हुआ तो वेलकम. People who do not have English as the first language across the globe take the CFA level 3 exam. इंग्लिश पे कोई मार्क्स नहीं है. is are am required नहीं है. डैश 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 अलाउड है. जितना छोटा उतना चलेगा, बट इट शुड बी स्पेसिफिक, पॉइंटिंग आउट. डोंट टीच इट कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज डिफाइंड एज एन फिक्स्ड रेट बॉन्ड, दिस हैपेंस. एक्सप्लेन मत करो ज्यादा. इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का कूपन बढ़ेगा फुल, फिक्स्ड रेट बॉन्ड का प्राइस गिरेगा फुल, इनवर्स फ्लोटर का कूपन गिरेगा. दैट्स इट. तो दिस इज एन एप्लीकेटिव आंसर कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स कैसे जवाब देते हैं.
जब चुनना पड़ता है तीन में से तो जो चुना उसका एक्सप्लेनेशन, जो बाकी दोनों नहीं चुना उसका एक्सप्लेनेशन, जब डिटरमिन एंड जस्टिफाई बोल रहे थे। इफ यू वांट टू गेट 3 आउट ऑफ 3 तो 1 + 3 4 मार्क्स का था, यू गेट 4 मार्क्स। सर अगर डिटरमिन गलती कर ली है फिक्स्ड रेट बॉन्ड तो जस्टिफिकेशन पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। अगर आपने डिटरमिन गलती किया तो जस्टिफिकेशन नहीं पढ़ेगा। सीएफए इंस्टीट्यूट का जो आंसर्स है इसका वो बड़ा बड़ा आंसर्स है, बिग आंसर्स आर गिवन पैराग्राफ वाइज, वो एक्सप्लेन कर रहा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव बीन गिवन सो दैट स्टूडेंट का पूरा रिवाइज हो सके। तो घर पे जब प्रिपेयर करना है तो सीएफए इंस्टीट्यूट का आंसर प्रेम से पढ़ना है, ओके, बिकॉज आपको वो पूरा का पूरा नॉलेज फिर से लेना है। बट एग्जाम में लिखना है तो सीएफए इंस्टीट्यूट का आंसर एकदम अनरिप्रेजेंटेटिव है। द वर्स्ट पॉसिबल आंसर आर दोस प्रोवाइडेड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट, नॉट एट ऑल रिप्रेजेंटेटिव। दे आर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन, दे आर नॉट गिवन फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एग्जाम। यू माइट हैव गॉट सम हिंट। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप इस तरह से जनरल बोलने के बजाय क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज सीएफए लेवल 3 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। कि ज्ञान मत दे, एक्सप्लेन कर, क्वेश्चन ले, क्वेश्चन से बता। जो बंदा ये समझ जाए वो आज के दिन लेवल 3 का प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकता है क्वेश्चन ओरिएंटेड। कि छोड़ो चैप्टर, बिकॉज चैप्टर में कुछ नया नहीं है, नथिंग इज देयर न्यू, बिलीव मी। लेवल 2 में नया था, आपने ब्लैक शोल्स मॉडल जाना ही नहीं था, आपने बाइनोमियल मॉडल मॉन्टी कार्लो से वैल्यूएशन आता ही नहीं था। लेवल 2 में नया था, लेवल 3 में नया कम है, बहुत ही कम है। लेवल 3 में पुराना है, रिसाइक्ल्ड एप्लीकेशन वाइज। काश कोई पर्सन जो सुन रहा है अभी समझ जाए लेवल 3 का सीक्रेट। लेवल 3 इज अबाउट स्ट्रेट अवे करते हैं भाई, ज्ञान नहीं। लेवल 3 का नंबर ऑफ आवर्स कम है क्लासेस का, लेवल 3 का नोट्स कम है क्लासेस का, बिकॉज हाउ कैन आई वेस्ट टाइम? स्पून फीडिंग इज नॉट गुड, इट डजंट हेल्प। जिनको भी स्पून फीड किया दे आर नॉट एबल टू पास। जो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं दे आर एबल टू पास। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, मैं अभी ज्ञान देने लग गया हूं। सेकंड क्वेश्चन सुनना। देयर इज एन एंडाउमेंट, सॉरी देयर इज अ पेंशन फंड, देयर इज अ पेंशन फंड एंड दिस पेंशन फंड हैज एन इन्वेस्टमेंट कमिटी। तो एक पेंशन फंड है, कॉर्पस में भी से $10 बिलियन। इट हैज एन इन्वेस्टमेंट कमिटी। इन्वेस्टमेंट कमिटी सॉर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, जो कंपनी चलाता नहीं है बट जो मॉनिटर करता है, ब्रॉड फिलॉसफी देखता है, तो इन्वेस्टमेंट कमिटी। और वो इन्वेस्टमेंट कमिटी का गाइडलाइन ये है कि उनको ट्रैकिंग एरर मिनिमाइज करना है। लेवल 2 में ट्रैकिंग एरर किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कमिटी बिलीव्स दैट द मार्केट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट। मैंने सेकंड पॉइंट बोला, फर्स्ट पॉइंट बोला ट्रैकिंग एरर मिनिमाइज करना है, सेकंड बोला मार्केट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, एक्सट्रीमली एफिशिएंट। तीसरा, जिस इकोनॉमी में वो लोग हैं जहां ट्रेड कर रहे हैं, जो एसेट क्लास बनाएंगे उसमें डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट लो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट बहुत हाई है। डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इवन इंटरेस्ट इनकम पे कमती टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट इज लो बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट इज वेरी हाई। मैं रिपीट, पेंशन फंड है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है। इन्वेस्टमेंट कमेटी को 3 चीज बोला गया है। नंबर 1, you have to minimize the tracking error. Number 2, markets are efficient. Number 3, short-term capital gain tax rates are very high. ठीक है, कुछ ग्रीक लेटर मैंने नहीं बोला। Now the question is, recommend whether you advise passive management or active management and give 3 reasons for your recommendation. Recommend whether passive management or active management and give 3 reasons for your recommendation. Recommend whether passive management or active management and give 3 reasons for your recommendation. Okay, the initial answers are all correct. आपको 3 reasons देना है recommendation का, तो choices are correct. सब के सब correct answer दे रहे हैं, तो determine में 1 marks मिल गया, recommendation में 1 mark मिल गया। Okay, सबसे common answer देखा, लोग बोल रहे हैं because markets are efficient. Fact repeat, 0 marks, 0 marks, साफ साफ। आपने बोला कि सर पैसिव मैनेजमेंट, करेक्ट 1 मार्क्स। रीजन दिया मार्केट्स आर एफिशिएंट, वो तो सामने दिया हुआ था। फैक्ट रिपीट कराया, नहीं मिलेगा मार्क्स, नहीं मिलेगा मार्क्स। एसटीसीजी इज हाई सो नॉट रिकमेंडेड, फैक्ट रिपीट किया, मार्क्स नहीं मिलेगा। बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हाई है, फैक्ट रिपीट किया, मार्क्स नहीं मिलेगा। एक जन बोल रहा है सर इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स में तो ट्रैकिंग एरर कम होगा, मार्क्स मिलेगा। बिकॉज if you do passive management you will follow an index, a benchmark, therefore your tracking error would be low. Correct? यानी कि रीजन क्या है, मिनिमाइज कर रहे हैं ट्रैकिंग एरर। तो पैसिव मैनेजमेंट में we will imitate a benchmark, पैसिव मैनेजमेंट में we will replicate a benchmark, therefore tracking error would be low, मार्क्स मिलेगा 1 नंबर। आपको मिनिमाइज करना है ट्रैकिंग एरर,
देयरफॉर पैसिव मैनेजमेंट में आप बेंचमार्क को रेप्लिकेट करोगे, बेंचमार्क को, देयरफॉर आपका ट्रैकिंग एरर कम होगा। परफेक्ट है, ज्यादा टालना नहीं है। मिनिमाइज ट्रैकिंग एरर लिखा हुआ था, कैसे होगा? फॉलो अ बेंचमार्क, बिकॉज पैसिव मैनेजमेंट है, इमिटेट अ बेंचमार्क, लो ट्रैकिंग एरर, हो गया। ठीक है, पैसिव मैनेजमेंट डैश, सपोज आंसर कैसे लिख रहा है, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। पैसिव मैनेजमेंट डैश रेप्लिकेट अ बेंचमार्क डैश लो ट्रैकिंग एरर, फुल मार्क्स। कोई इज आर एम लिखा ही नहीं मैंने, मेरा इंग्लिश बहुत खराब है सपोज। सेकंड, मार्केट एफिशिएंट डैश नो मिस प्राइसिंग डैश नो स्कोप फॉर अल्फा डैश देयरफॉर पैसिव मैनेजमेंट। मार्केट एफिशिएंट, नो मिस प्राइसिंग, नो स्कोप फॉर अल्फा डैश देयरफॉर पैसिव मैनेजमेंट। सब डैश डैश आंसर, ठीक है, सब डैश डैश आंसर। थर्ड वाला, हाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट, ये है ना। पैसिव मैनेजमेंट एडवाइजेबल, पैसिव मैनेजमेंट बिकॉज डैश लो चर्निंग, लो चर्निंग, बाय सेल कम होगा, देयरफॉर विल अवॉइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विल अवॉइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेस चर्निंग, देयरफॉर विल अवॉइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लो चर्निंग का मार्क्स मिल रहा है थर्ड वाले में। सेकंड वाले में अल्फा का स्कोप नहीं है, उसका मार्क्स मिल रहा है। फर्स्ट वाले में बेंचमार्क को रेप्लिकेट करे, देयरफॉर लो ट्रैकिंग एरर का मार्क्स मिल रहा है। हिंदी में समझो, फर्स्ट वाले में बेंचमार्क को रेप्लिकेट करे, देयरफॉर लो ट्रैकिंग एरर, हिंदी। सेकंड, मार्केट एफिशिएंट है तो अल्फा का स्कोप नहीं है, उसका मार्क्स। थर्ड, सिंस अपने पैसिव मैनेजमेंट करेंगे चर्निंग कम होगा, देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अवॉइड होगा। यू अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। उसके अलावा गीता का ज्ञान देंगे ना, अब तो ज्ञान देते रह जाएंगे, पेपर भी छोटेगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा, पेपर छोटेगा, पहला बात तो ये। अंडरस्टूड? व्हाट एम आई डूइंग, कैन यू सी समथिंग? सबसे पहली बात ये है, लेवल 2 में इस तरह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। लेवल 1 जिनका पास हुआ है उनके लिए लेवल 2 का मल्टीपल रिग्रेशन का एनोवा टेबल दिखाऊं, यहां पे एनोवा टेबल देखो, एसएसआर, एसएसटी, एफ रेशियो, इस तरह से नहीं हो सकता है। रेसिडुअल इनकम का सम कराऊं वो लोग को, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, नहीं हो सकता है। बॉन्ड में टर्म स्ट्रक्चर क्वेश्चन कराऊं, नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेट इश्यूज में मर्जर का, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन कराऊं, नहीं हो सकता है। लेवल 2 में नया चीज जानने का था। लेवल 3 में जो जाने हैं लेवल 1 लेवल 2 में 60% स्टफ मिनिमम इज लेवल 1 लेवल 2 का चर्निंग, यानी क्या करना है, एप्लीकेशन। जो तुमको आता है वो आता है, एप्लीकेशन। तो स्मार्ट पीपल क्रैक लेवल 3 in 4-5 months also. Unsmart people do not clear level 3 in 3-4 years also. Repeat. Smart people clear level 3 in 3-4 months. Unsmart people do not clear level 3 in 3-4 years. सर ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया आपने, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। My partner at ULEN, विवेक महेश्वरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, I think MBA from Symbiosis, MS फाइनेंस, एक इंडियन CFA था वो भी किया, CFA level 1 one shot, CFA level 2 one shot, then left Calcutta, worked in EY for around 10-12 years whatever. CFA level 3 4 साल लगा, 4 times failed, then came to Calcutta, transferred, discussed with me and passed. ये होता है घर का एग्जाम्पल। ये मैं ये नहीं बोल रहा मेरे कारण पास हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं, पर वो समझा कि एप्लीकेशन नहीं कर रहे। ही वॉज अ ग्रेट रीडर, कोर को चाप चाप के रीड करता था, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोर को आप रीड कर सकते हो, पर कोई सोच रहा है कोर को रीड करके पास हो जाएंगे, गलत सोच रहे हैं। दैट्स नॉट द वे। कोर इज नॉट ए डिसएडवांटेज, बट डिसएडवांटेज आप क्रक्स ही नहीं समझे कि लेवल 3 इज अबाउट एप्लीकेशन। लेवल 3 में इकोनॉमिक्स नहीं है, बट लेवल 3 में कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस में अपने को हर एसेट क्लास का ER, SD, कोरिलेशन फोरकास्ट करना है। एप्लीकेटिव इकोनॉमिक्स है, आप अप्लाई नहीं करोगे, ज्ञान कितना पढ़ लोगे? बिजनेस साइकिल्स आपने पहले ही पढ़ा है, वापस से यहाँ पे चालू कर देगा बिजनेस साइकिल। आपने अभी लेवल 2 में इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा है, जहां पे GL + GY/L, वापस से आ गया लेवल 3 में GL + GY/L, पढ़ ले, नया इंग्लिश है, टाप टाप के लिखा है, कीप ऑन स्टडिंग। इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट दैट वे। प्लस देयर विल बी बोर्डम, प्लस यू आर वर्किंग, प्लस you have some other responsibilities if you are not working, because life has progressed. Now you are more responsible towards your family, whatever it is. So one of the reasons for not clearing level 3 is that even a student who is purely a student doesn't understand that उसके पास समय अब कम है, उसको application करना है, application. I have been frustrated seeing the answers that people write in the exam, and therefore for the last 2 terms I have started grading the papers. जो मॉक टेस्ट होता है लेवल 3 में, मैं चेक करता हूं, चेक बैठ के, एंड उससे फायदा हो रहा है। लास्ट टर्म में हुआ, ये नेक्स्ट टर्म में अभी ग्रेडिंग ही कर रहा था, उसके बाद तभी तो चढ़ा हुआ है, ठीक है ना।
लेवल 3 का ग्रेडिंग करते 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 करते, बट उससे लोग पास हो रहे हैं, बिकॉज जब लेवल 2 तक पहुंचा दिया तो लेवल 3 तो पार कराना जरूरी है. तो यू माइट कम अक्रॉस सम पीपल ऑन द स्ट्रीट जो बोलेगा नहीं यार पता नहीं लेवल 3 में उस तरह से ना सर पढ़ाए नहीं जैसे लेवल 2 में पढ़ाए थे, मतलब उसमें तो पूरा क्वेश्चन वैसे हो जाता था, ठीक है, पता नहीं लेवल 3 में तो उस तरह से नहीं है जैसे लेवल 2 में था. द पॉइंट इज दैट लेवल 3 इज नॉट सपोज टू बी दैट वे. आप छोड़िए कोर को, छोड़िए सर को, आप आइए क्वेश्चंस में. कैसे समझाऊं? आपने अगर ये नहीं समझा, आर यू गोइंग टू रिस्क योर 2-3 years? मैं कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा हूं. माई पॉइंट एट लेवल 3 इज एप्लीकेशन. आओ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट का आंसर रिप्रोड्यूस नहीं करना है, सबसे खराब आंसर है, बट समझा रहा बढ़िया है, नॉलेज दे रहे हो. लिखना डैश डैश डैश. हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो. मैं और एग्जांपल्स ले लेके भरमार कर सकता हूं, बट देन आई विल बी ब्लेम्ड दैट सर ये क्या था, यू स्टार्टेड टीचिंग लेवल 3. सो आई हैव ग्रेट प्लान्स फॉर लेवल 3. लेट्स कम टू द अदर डिस्कशन, सम मैकेनिकल डिस्कशंस. लेवल 3 का एग्जाम कब दे? अगस्त 25 में दे या फेब 26 में दे? अगस्त 25 में दे या फेब 26 में दे, यही मेन डिसीजन है. अपने जनवरी में खड़े हैं, अगस्त 25 में लेवल 3 दे रहा है, एकदम पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है. फेब 26 में भी दे सकते हैं. आपको अपने कमिटमेंट्स देखने पड़ेंगे. You have to see your commitments. What is your present state of affairs? You have to see your commitments. If you think that commitments नहीं है, मैं जोश में हूँ, I think go for August 25 because it's possible to do. I don't know the fees factor कि August 25 का शायद माने अर्ली बर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीजों में मैं ध्यान नहीं देता हूँ. आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम. ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या स्कॉलरशिप है क्या नहीं है, आई एम नॉट अवेयर. अगर आपके लाइफ में बहुत फिनोमिनल चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, फिनोमिनल चेंजेस होने वाले हैं, यू आर गोइंग टू सिट फॉर सम इंटरव्यूज, यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम जॉब और दिस और दैट, एंड यू फील दैट यार क्या फायदा अगस्त का, इससे बढ़िया लाइफ को स्पेस आउट करते हैं. समझ मैंने क्या होता है ना, कभी कभी अपने खाना खाने बैठते हैं, वेरी बैड एनालॉजी पर आ गया तो बोल के रहूंगा, एंड यू आर गल्पिंग फूड. अरे रुक जा, ठहर जा, स्पेस इट आउट इन द स्टमक, थोड़ा सा गैप के बाद, उसके बाद वापस चालू कर. सो थिंग इज दैट, do you think your life and your career is dependent upon August 25 or Feb 26? Very myopic thought. It's not going to happen that way. Those of you who want to become fund managers, equity research analysts, the biggest virtue required is patience. धैर्य. You have to wait. So मैं August 25 के लिए discourage नहीं कर रहा हूँ. I think it's possible. मैं August 25 के लिए पागलों के जैसे encourage नहीं कर रहा हूँ. I think one should take a rest and think that थोड़ा सा यार केवल पढ़ते ही रहेंगे क्या? बाहर निकलते. अगर जॉब नहीं की है, जो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, चाहे जॉब का चाहे इंटर्नशिप का, ठीक है, वो एक बार लपक लेते हैं, वो लपक लेते हैं, चालू तो करते हैं. वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा? खराब एक्सपीरियंस होगा, लगेगा फालतू का वो जॉब ज्वाइन किए, बट फिर भी एक मैच्योरिटी आएगा, बिकॉज आदमी गिर के ही संभलता है. जब एक्सप्लॉइट होता है तभी जाके वो कैरेक्टर आता है. ज्ञान सुनने से कैरेक्टर नहीं आता. सो इवन इफ यू लैंड अपॉन अ जॉब विच इज नॉट दैट गुड, दैट्स ओके. द फैक्ट दैट यू डेल्ट विथ द एनवायरमेंट ओवर देयर, the fact that you dealt with the exploitation over there, the fact that somebody missold the job to you, the fact that you got so little pay that your father or mother or uncle, father mother नहीं एक्चुअली वो करते नहीं, अंकल लोग जो होते हैं ना, सो चाचा जी मामा जी ताऊ जी वगैरह, वो बोलेंगे ओ ये क्या तो जॉब कर रहा है, ये तो हम लोग अपना ड्राइवर को दे देते हैं. Anything could be there. That's not the way that you evaluate yourself. I think coming out of the cocoon of inexperience, gullibility is necessary. Step out, take a job. And if you think for that reason you have to give Feb 26, perfect, no issues at all. अंडरस्टूड. सब आप तो डिप्लोमेटिक है, अगस्त 25 भी बोल दिया, फेब 26 से बोल दिया. यस, बिकॉज वन साइज डज नॉट फिट ऑल. यू हैव टू टेक योर ओन कॉल. करेक्ट. नेक्स्ट सर, पाथवे. नाउ सीएफए इंस्टीट्यूट ने 2025 से, इस साल से 3 पाथवे डिजाइन किया. बोला जो लोग सीएफए लेवल 3 दे रहे हैं उनके लिए कॉमन कोर होगा, कॉमन पोर्शन, और उसके अलावा 3 स्ट्रीम्स है, 3 में से एक चुन सकते हो. नंबर 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नंबर 2 प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, नंबर 3 प्राइवेट मार्केट्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट मार्केट्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तो फील आपको हो रही है, शुरू से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही था. ओके, रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स आर ओपनिंग इन इंडिया. आई थिंक 2027-28 तक देयर विल बी फिनोमिनल डिमांड फॉर फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स इन इंडिया. इक्विटी में तो खैर है ही, गोज विदाउट सेइंग. Alternate investment funds, category 1, category 2, category 3 are mushrooming like anything. There is a huge demand for fund management and the demand is like overly rising. Okay, but demand for people who really know, who have the passion. नहीं, मैंने तो क्वेश्चन किया था एग्जाम में, हमारे ऐसे आता तो वो नहीं चलेगा. आपको टेबल पे बैठ के अपना मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ विच मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशंस एंड कमिंग आउट ऑफ द कोकून. प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इज अबाउट डीलिंग विद द अल्ट्रा HNIs. Dealing with the ultra HNIs. इंडिया का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली स्क्यूड. वेल्थ लाइज इन द टॉप 5%, 10% of the people. वो टॉप 5%, 10% people का you are the wealth manager. Okay, you are dealing with them, understanding their risk objective, return objective, their constraints. How do you manage? How do they manage their taxes?
हाउ डू दे मैनेज द एस्टेट प्लानिंग, ओके, वो लोग का जो जनरेशन इंटर जनरेशन वेल्थ ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, वो लोग का कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन है। जैसे मैं अपना बात करूं तो माई कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन इज इन माई एजुकेशन। एसएससीआई में मेरा कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ है। इफ आई टॉक अबाउट माई वेल्थ, 60%, 70% वेल्थ इज इन एसएससीआई, सो दैट्स अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आई एम रनिंग। ओनली 30-40% वेल्थ इज नॉन एसएससीआई, ठीक है। तो इफ एसएससीआई वाज लिस्टेड, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट कुड बी डन, मैं उस पर पुट बाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सिंस एसएससीआई इज प्राइवेट लिमिटेड, सो व्हाट कैन आई डू फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग माई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। आई हैव सम बिहेवियरल बायस, सन की हूं, ठीक है ना, ओके। मेरे पापा ने कुछ बोला था कि बेटा ये वाला तुम यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करना, जो भी राजस्थान की कंपनीज है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को बोल रहा हूँ, ठीक है। आई हैव सम ओवर कॉन्फिडेंस बायस, सीएफए पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को लगता है मेरे को स्टॉक मार्केट आता है, तो मैं फंड मैनेजर का सुनता ही नहीं हूँ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड लेवल 1 में जो था, तो दे हैव सम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव। What do I do about my insurance? I am 47 years old. What if something untoward happens to me and my income earning capacity is gone? I'm not able to speak. Something happens to me. I die. What happens to my family after that? How am I planning my retirement? All that is a part of private wealth management. Okay? And the third part, private markets, is getting into private equity venture capital. Private equity venture capital space में private markets है. So these are the 3 paths. You have to see which path generate goosebumps for you. कौन सा पाथ आपको एकदम अंदर से मजा आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इफ यू आस्क मी अपॉर्चुनिटीज, तीनों में ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज है, ब्रिलियंट तीनों में ही। इंडिया में लकीली अपने हैं, फाइनेंस चुने हैं, इतना बढ़िया डिसीजन हो गया ना, कोई लिमिट नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट तीनों में बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। सीएफए इंस्टीट्यूट 2025 में पहली बार ये 3 पाथवे लाया है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो था ही, पर बाकी दोनों पाथवे का जो राइटअप है वो फिल्दी है। बाकी दोनों पाथवे का जो राइटअप है वो अनसंड उठा लिया, उसको रिफाइन नहीं किया, उस पर क्वेश्चंस नहीं है, इट डजंट हैव टेस्टेबिलिटी। तो व्हेन यू प्रिपेयर यू विल रियली फील हैंडीकैप्ड, स्पेशली इन प्राइवेट मार्केट्स, बिकॉज प्राइवेट मार्केट्स तो ऑल टुगेदर न्यू है, ऑल टुगेदर न्यू। पहली बार सीएफए इंस्टीट्यूट में अपना फेस घुसाया है। तो मैंने बहुत देखा है अपने टीचिंग करियर पे, टीचिंग फॉर मोर देन 25 years now, I have seen when experimentation is done, you should not become a slaughter in that thing, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंटेशन का व्हीकल नहीं बनना चाहिए, आपके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो। Therefore, I have been very, very rigid in advising go for portfolio management. But sir, I love private wealth management. It's okay. Private wealth management अलग से पढ़ लेना। इनफैक्ट हम लोग का जो कोर्स का पैकेज आपको मिलेगा उसमें एक ऑप्शनल क्लासेस देखेंगे आप, मेन क्लासेस, ऑप्शनल क्लासेस, और ऑप्शनल क्लासेस में मैंने टैक्सेस, एस्टेट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, बिहेवियरल बायसेस, ये सारा का सारा मैंने ऑप्शनल में डाल रखा है। तो कोई स्टूडेंट अपने से कॉमन कोर लेता है, कॉमन कोर, और उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसको नहीं करना है, वो सपोज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में जाता है, उसको मुफ्त का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट आधा पर्दा मिल रहा है। इट इज देयर इन द ऑप्शनल। Okay, so if somebody is really wanting to go for private wealth management, SSCI is providing free of cost private wealth management. It is there in the optional segment. But I will not be responsible for answering your doubts and all that. Okay, I'll not be. ठीक है। प्राइवेट मार्केट्स में मेरा कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटेड एंड आई डोंट थिंक उस पर जाना चाहिए, बिकॉज उस पर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द पाथवे दैट आई एम प्रोवाइडिंग, okay, for 2025 and Feb 26, and that's it. So you can take common core from me and maybe prepare yourself or go for some other vendor if you are going for some other pathway. But private wealth management पे जा रहे हो तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल में डाला हुआ है, ठीक है। So portfolio management pathway जाना चाहिए मेरे ख्याल से, and since I believe in it, therefore I'm offering that. मैंने जॉब का बोल दिया, इंटर्नशिप का बोल दिया। दामोदरन का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये वाले सीजन में। Okay, this season दामोदरन का नया कोर्स स्टार्टिंग ऑन कॉर्पोरेट इश्यूज, माने कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ऑन वैल्यूएशन। दोनों में से कोई एक कोर्स कर लो लेवल 3 के साथ साथ, बिलीव मी। ओके, 3 दिन या 4 दिन क्लास होती है शाम को, आपको इंटीमेशन मिलेगा यूट्यूब पे। और उसके अलावा उसका जो प्रोजेक्ट है, उसका जो एक्सेल, उसका जो वैल्यूएशन है, पूरा करना, चाप के फायदा होगा, चाप के। ओके, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। प्रॉब्लम है मुफ्त का है, 1 करोड़ से ऊपर का कोर्स मुफ्त का है ना, तो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट वाज अनदर गाइडेंस। उसके अलावा आपको जो करना है करो। somebody wants to do trading, you learn trading, you want to learn through SSCI, welcome. You don't want to learn through SSCI, no issues, learn from somewhere else, no problems at all, ठीक है। So I have more or less cleared every doubt that I saw. We can keep on just going on, but I believe in efficiency, एक कमती टाइम पे ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करना, and that's what I have done. Python SQL is something which I am never interested in, ठीक है। अगर मैं algo trading करता भी हूं तो I am not the person who codes the same, so I think I am not the best person to advise in this regard. Somebody interested in Python SQL should also think for CQF, certified quantitative finance, वो भी सोचना चाहिए CQF वगैरह, बिकॉज जब कोई चीज में जा रहे हो तो हाइट्स पे जाओ ना यार, शर्माना क्यों है। बहुत डिफिकल्ट पेचीदा क्वेश्चन, कैन वी गिव आवर एग्जाम्स फ्रॉम अदर कंट्री बीइंग इंडियन पासपोर्ट होल्डर? आई डोंट नो, क्या पता सर, आपको पता नहीं है? नहीं पता है भाई, नहीं पता है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, सी यू अगेन straight away in classes.
there will be live classes in between, but those live classes shall be applicative. For example, if you ask me कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, you should start with asset allocation and fixed income. कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए लेवल 3 में? एसेट एलोकेशन एंड फिक्स्ड इनकम. तो एसेट एलोकेशन और फिक्स्ड इनकम का लाइव क्लासेस बीच में होगा, पर दोस क्लासेस विल बी एप्लीकेटिव. ओके, मैं सीधा सीधा उसका क्वेश्चंस कराऊंगा, अज्यूमिंग दैट आपने कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं. ठीक है, तो बट एज आई सेड, क्लासेस आर लेस इंपॉर्टेंट, कोर इज लेस इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ द कोर इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ब्लू बॉक्सेस जो चैप्टर के बीच का एग्जांपल्स है कोर का, वो एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? ओके, बाय बाय, सी यू.